All of you join your hands. Om. Sairam. Now, last time we discussed about the question answers of chapter 1, and you have to return. I think most of the students have written the question answers in their copy. Okay. Now we come on to the chapter number 2. So before move on to the chapter number 2, I am going to show you one clip. अगर आपको साउंड नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में बता देना, चैट बॉक्स के थ्रू इन्फॉर्म कर देना. Hello students, today we are going to learn about the number system. In early days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. These methods were not आरुष, आपको साउंड आ रहा था? Yes, sir. ओके. Hello students, today we are going to learn about the number system. In early days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. These methods were not adequate and had many limitations. To overcome these limitations, many number systems were introduced with the passage of time, like decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. A number system is a set of values used to represent different quantities such as number of students in a class, number of viewers watching a particular show, etc. We use the decimal number system in our day-to-day life, whereas a computer represents all kinds of data and information, text, numbers, graphics, etc. in the binary number system. The total number of digits used in a number system is called its base or radix. The base is written after the number as a subscript. For example, 15, 10. Students, who is he? He is Aryabhat. Aryabhat was India's greatest mathematician and astronomer. He introduced the concept of zero, without which modern computer technology would have been non-existent. Okay, first let us start with the decimal number system. The need for counting paved the way to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3 till 9 are used to form any number. Most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. Decimal number system consists of 10 digits, that is 0 to 9, with the base 10. Each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value. Example 82 minus 256, 52.87, etc. The value of each digit in a number depends upon the following: the face value of the digit, the base of the number system, the position of the digit in the number. Each position represents a specific power of base 10. The rightmost digit of a number is called least significant digit, whereas the leftmost digit is called most significant digit.
For example, the number 547 can be represented in the following way. 7 into 10 raised to power 0 units 7. 4 into 10 raised to power 1 tenths equals to 40. 5 into 10 raised to power 2 hundredths equal to 500. Total 547. From this we observe the positional value of each digit increases tenfolds as we move from right to left. In the above mentioned example, 5, 4 and 7 are the face values and their place values are hundreds, tens and units respectively. The place value of a digit depends on its position in the number. Now we will discuss about the various types of number systems that are used in a computer. Students, now let's find out about the binary number system. The binary number system consists of only two digits, that is 0 and 1. Since this system uses two digits, it has the base 2. All digital computers use this number system and convert the input data from the decimal format into its binary equivalent. Students, do you know that Gottfried Leibniz, a German mathematician, is credited with the invention of the modern binary number system? Now students, why should we use binary? A computer cannot understand human language. Rather, it understands only the binary code. Therefore, the data is entered into a computer, is converted into its binary equivalent. It further converts the binary results into their decimal equivalents for output. Students, let us have a discussion. Why do we use binary number system in computers? Okay, now let us find out how the decimal number is converted into binary system. The equivalence between binary and decimal numbers can be understood with the given examples. To convert a decimal number into a binary number, follow the given rules. Step 1. Divide the given decimal number with the base 2. Step 2. Write down the remainder and divide the quotient again by 2. Step 3. Repeat the step 2 till the quotient is 0. Step 4. Write the remainders obtained in each step in the reverse order to form the binary equivalent to the given decimal number. Example 1. Least significant digit. Most significant digit. Thus, 25 raised to power 10 equals to 11001 raised to power 2. The base of number is given as subscript. Example 2. Least significant digit. Most significant digit. Thus, 321 base 10 equals to 101,000,001 base 2. That is, placing the least significant digit at the top and the most significant digit at the bottom. Observe that the remainders obtained in each step are written in the reverse order. So it's just a revision for the chapter number 1. Now there is one activity. Fill in the blanks. Okay. Yes. So those students who know the answers, they can tell the answers. What is the answer number 1? 2. 2. 2.
Okay. What is the answer number 2? Decimal number system. Decimal number system. decimal number system. Correct. Answer number 3. 8. 8. Okay. मेरे को भी नहीं Correct. Answer number 4. 10. 10. 10. Answer number 5. Binary number system. Binary number system. Correct. Okay. Answer number 6. Hexadecimal number system. Hexadecimal number system. Correct. Answer number 7. 0. Okay, now let us see the answers. Now, question number 7 answer is 0. Okay, ठीक है. हो गया hexadecimal. ये पसीन ही नहीं है, उसके अंदर काम नहीं करेगा ना ईमेल। पहले तो ये अच्छा काम करना था। Okay, now after we come on to the chapter number 2, and here we'll show you the topics पहले से चार्ज कर देना। what we have to cover in chapter number 2. So in chapter number 2 we are having formulas and functions. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को अप्रैल मंथ का कुछ याद है. ओके, तो चैट बॉक्स में हर स्टूडेंट को एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे जो भी उनको याद है. कोई भी एक फॉर्मूला आप चैट बॉक्स में लिखेंगे. चलो रहने दो इसको ऐसे ही। हमें कब फोन हो गया, हमें आपका माइक म्यूट कर दो. इधर चार्ज। हमें आपका माइक म्यूट पे रख दो. यस. ओके, व्योम ने एक सिंपल फॉर्मूला लिखा है. आरुष, ठीक है. आरुष और अनुमेघा को एक यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट हर फॉर्मूला जो होगा वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा. ठीक है, मुझे यही देखना था कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ये ध्यान रख रहे हैं कि एक्सेल का फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा. ठीक है. Some more students are writing the formula in chat box. तो अनुमेघा और आरुष, हाँ आप भी कोई दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. अयान, द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला B2 colon B7, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो पैरामीटर्स हैं. अयान, all of you try to write a simple formula in chat box. कोई भी एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. हाँ, ये ठीक लिखा है व्योम ने. लक्ष्य ने लिखा इक्वल टू A2. सर वो इसको complete पूरा नहीं करना लिख पड़ेगा. चलो लक्ष्य, पूरा नहीं लिखा मैंने, वो गलती से एंटर दब गया. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. अनुमेघा, यू हैव टू आल्सो कंप्लीट दिस फॉर्मूला. कैथरीन का फॉर्मूला करेक्ट है. व्योम ने फिर से एक और फॉर्मूला लिख दिया. अग्रिमा हैज टू राइट again one formula. This formula is incomplete. मृणालिनी का फॉर्मूला करेक्ट है. आरुष का फॉर्मूला करेक्ट है. हाँ लक्ष्य, ये भी ठीक है.
Okay, it means that most of the students remember that we are going to use the formula in Microsoft Excel. So now I am going to show you the Microsoft Excel sheet, and before that we revise some terms related with micro formulas and functions. So chapter number 2, formulas and functions. We have to cover all these topics: basic formula, compound formula, cell range, formula on text, cell reference of another worksheet, formula errors, functions, common functions, function library, managing worksheet. Formulas in Excel. So for this, we have to use references, operators, constant, and function. Okay, now there is one formula is here, and you have to remember the terms related with one simple formula. So this formula is the equal to symbol, then these are operators, plus, into, minus, these are operators. Okay, 1, 2, 3. Again, there is one operator of bracket, then colon is also an operator. So these are operators, and then come on to the operands. Operands का मतलब ये है कि जो आप वैल्यू सेल में टाइप करेंगे, जैसे A2 है, B2 है, 5 है, ये ऑपरेंड्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है. एंड दिस इज अ फंक्शन. एंड जब आप किसी फंक्शन के साथ एक ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दैट वैल्यू इज नोन एज रेंज. ठीक है, ये रेंज का ध्यान रखना है आपको. E3 कॉलन E5 ये रेंज प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सेल एड्रेस ऑल्सो. A2, B2, E3, E5 they are known as cell address also. Okay, so this is the simple basic formula that we can use in Excel sheet. See now, जब आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो, आप कर्सर्स का बहुत इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. कर्सर देखना आप, है ना. मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ एक्सेल शीट पे, तो आप देखना कि कर्सर बार बार चेंज होता है ना. तो मैं फिर जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो बताएगा कि ये कर्सर कब कहाँ पे चेंज होता है, उसका जो शेप है कैसे चेंज होता है. ठीक है, अभी ये सेल पर है, ठीक है, सेल पर है तो इसका सिंबल ये है. अब आप देखना इसका सिंबल कैसे चेंज होगा. ये सिंबल चेंज हो गया कर्सर का, ये फिर से चेंज हो गया, ये यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, ये यहाँ पे फिर से माउस का कर्सर चेंज हो गया, फिर से चेंज हुआ, यहाँ पे फिर से चेंज हो गया. ये देखो. ओके, सो व्हाई दिस कर्सर गोइंग टू चेंज अगेन एंड अगेन. ये देखो यहाँ पे अभी एक प्लस साइन आ गया यहाँ पर, और अब देखना ये देखो अब 4 हेडेड एरो आ गया है. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू टेक योर कॉपी एंड पेन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टर्म्स. आप सब अपना कॉपी और पेन ले लो. ठीक है, अगर आपको कर्सर्स के मीनिंग पता लग गए देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करना. तो सबसे पहला हमारा ये जो कर्सर आ रहा है, ये आ रहा है सिलेक्ट. दिस इज फॉर टू सिलेक्ट द सेल. ठीक है, ये पहला वाला कर्सर है. तो आप सिर्फ इतना लिख लो, सिलेक्ट सेल, पहले कर्सर का नेम है ना. अब ये 4 हेडेड एरो, सेकेंड टाइप का कर्सर आ रहा है 4 हेडेड एरो.
फर्स्ट वन हमारा आया था, दैट इज सिलेक्ट सेल। सेकेंड आया था हमारा कर्सर 4 एडेड एरो। ओके, अब देखते हैं थर्ड कर्सर कैसा आएगा। सिलेक्ट कॉलम और सिलेक्ट रोज। ठीक है, सो थर्ड टाइप का कर्सर आ रहा है सिलेक्ट कॉलम और रो। अब फोर्थ टाइप का कर्सर किस तरह से आएगा? डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो। नाउ नेक्स्ट कर्सर किस तरह का आएगा? आई। ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू एन आई। सिर्फ आई लिखना है हमको वहां पे, आई। ठीक है, आई टाइप का कर्सर आएगा। नेक्स्ट है ये, नाउ दिस कर्सर इज रीसाइज, है ना। ये कर्सर है रीसाइज। रीसाइज करना है सेल का साइज, अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो इसको हम बोलते हैं रीसाइज एरो। फिर इसके बाद आ गया रीसाइज। सिक्स टाइप के कर्सर देख लिए। अब एक और बचा हुआ है और वो है डबल एडेड एरो हो गया है। हाँ, दिस इज प्लस सिंबल। ठीक है, लास्ट टाइप का कर्सर है प्लस, एंड दैट इज यूज्ड फॉर फिल। ठीक है, ये प्लस सिंबल जब आएगा तब हम फिल का यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ फिल। इतने सारे कर्सर्स हो गए। ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपना दोज हु आर यूजिंग द कंप्यूटर एंड लैपटॉप, वो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा सो दे कैन कंटिन्यू ऑन दिस टाइप्स ऑफ कर्सर्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू यूज वन सिंपल फार्मूला। सबसे पहले हमें एक सिंपल फार्मूला अपने एक्सेल शीट में टाइप करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स होते हैं ना, इनमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है कि ये टिप्स देते हैं आपको। टिप्स का मतलब होता है जब हमारा माउस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है तो आप देखोगे ये आपको टिप प्रोवाइड करते, देखना आपको अलग अलग टिप्स आएंगी यहाँ पे। इनके नेम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, फाइल सर कौन सी है? माइक्रोफोन और ऑन करने का है Ctrl+D। क्या ऑन करना है? माइक्रो। सर माइक्रोफोन ऑन करने का है ऑप्शन Ctrl+D। माइक्रोफोन बंद है क्या मेरा? नहीं सर, आपने हाँ हाँ, ऑप्शंस आते तो माइक्रोफोन का ये ऑप्शन है। Ctrl+G मतलब कि जो हमारा गूगल मीट है उसका माइक्रोफोन। यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। नाउ सो हर जगह आप देखेंगे ये आपको टूल टिप प्रोवाइड करता है। ये देखो, जैसे ही मेरा माउस किसी ऑप्शन पे जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, तो वो आपको एक टूल टिप प्रोवाइड करता है।
ठीक है, जैसे ही आप माउस को यहाँ ले जाएंगे ये इसका नेम आ जाता है। फिर आपका माउस यहाँ पर आया, ये आपको बता देगा कि ये फॉर्मूला बार है। ओके, सो वी हैव टू टाइप। पहले आपको क्या करना होगा, पहले डिसाइड करना होगा कि हम किस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक सेल को सिलेक्ट करा है, फर्स्ट स्टेप। सेल सिलेक्ट होने के बाद देन आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज एड्रेस फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे। अब जैसे कि मैं किसी सेल का एड्रेस टाइप कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये था हमारा सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के बाद फिर मैंने एक ऑपरेटर का यूज करा है, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज द सेकंड सेल एड्रेस। ओके, अब आप देखोगे वो ग्रीन में आ गया। फिर से मैं एक ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, एंड नाउ हियर अब देखो उसका फिर से कलर चेंज हो गया। So I have written a simple formula on Excel sheet. ठीक है, and after that you have to press enter. अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को मेरे ये जो अभी मैंने फॉर्मूला टाइप करा है और यहाँ पे 0 आया है, उसका मीनिंग समझ में आया है ना। ठीक है, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको बताने देना आप। नाउ योगिता आप बताएंगे वहां पे एक्सेल शीट में यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, ये यहाँ पर। योगिता, मैंने तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बट व्हाई इट कम्स हियर 0 इन माय शीट। योगिता के बाद वैशाली, आप ट्राई करोगे। वैशाली, आपके पास आंसर है। वैशाली के बाद साराक्षी। साराक्षी के बाद सानिका। सर हाँ बताओ। सर कैन यू Yes. एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक फॉर्मूला सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था आप उसे फिर से लिखकर बता सकते हैं? ये फॉर्मूला मैंने टाइप करा, ये आपको विजिबल हो रहा है? नो सर। ये विजिबल नहीं है आपको? नो सर। क्या करना पड़ेगा हमको? ये देखो, अब आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। नाउ इट इज विजिबल टू यू। अब आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू A1 प्लस B2 प्लस C2। तो A1 एड्रेस यहाँ पर है, B2 एड्रेस ये रहा, C2 एड्रेस ये रहा, है ना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद ये 0 आ जाता है। ये 0 क्यों आ रहा है? तो साराक्षी के ऊपर किसका नेम है? सानिका। सानिका, आप ट्राई करोगे कि 0 क्यों आ रहा है? सानिका के बाद नेक्स्ट है रोशनी जाटव, आप ट्राई करोगे? फिर है प्रशांत, आप ट्राई करोगे? फिर नेक्स्ट है पलक, मृणालिनी, लक्ष्य। यस सर। हाँ, आप ट्राई करेंगे वहां 0 क्यों आ रहा है शीट में? सर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हमारे फॉर्मूला में कुछ एरर हो या फिर कुछ मिसिंग हो तभी 0 आता है। चलिए, अभी आपका आंसर ठीक तो है, लेकिन अभी
जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके लिए वो आंसर ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं, फिर अयान बताएगा। अयान को अगर पता हो, अर्पिता को पता हो, अनु मेघा को पता हो, अमय को पता हो, अग्रिमा, आदित्य, आरुष। सर मुझे पता है। हाँ, आरुष को पता है, तो मैं आदित्य सर को पता आदित्य। है। अच्छा, ना आदित्य आप बताओ, सर जीरो जब क्यों आ रहा है? सर जब फॉर्मूला गलत हो जाता है या फिर जब फॉर्मूला गलत हो जाता है तब उसमें वो एरर आता है। तो फार्मूला तो करेक्ट है ना, हमने फार्मूला तो करेक्ट है हमारा। सर या फिर कुछ मिसिंग होगा सर मे आई टेल? या फिर सेल एड्रेस पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, व्योम, हम एक क्लास स्टूडेंट और है, आरुष, और फिर उसके बाद कैथरीन। इन दोनों में से अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो आरुष और कैथरीन में। यस सर। हाँ बताइए कैथरीन, जीरो सर आई क्यों आ रहा थिंक है आपने सर उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी इसलिए। हाँ ये वैल्यू नहीं डाली आपने। क्योंकि अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में हमने तो वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करी अभी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे A1, ये A1 है। ठीक है, अब मैं A1 में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 25। फिर नेक्स्ट था मेरा B2, B2 में मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। B2 के बाद था फिर हमारा C3, C3 में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं, C3 नहीं था, C2 ही था। सर C2। C2 था, है ना। C2 में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही थी, फॉर्मूले में वैल्यू चेंज होती गई। जब मैंने पहले वैल्यू प्रोवाइड कर दी, A1 में प्रोवाइड कर दिया, B2 में, और फिर C2 में प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को अभी क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने क्या करा था, मैंने रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर दी। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी। वो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा करा था। ठीक है, सो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो पहले उस सेल में वैल्यू एंटर कर दें एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, ये टॉपिक हमारा हुआ जिसमें कोई बेसिक फॉर्मूला क्रिएट करना था। अब उसके बाद है कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूले का मतलब ये है कि व्हेन वी यूज मोर देन वन ऑपरेटर, ठीक है, तो वो कंपाउंड फार्मूला बन जाता है। सिंपल फार्मूला जिसमें हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग फार्मूला ऑन टेक्स्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया गया है। सो you can also apply the formula on text also, and that is known as concatenation। मतलब मीनिंग ये है कि दो सेल की वैल्यू को हमको ऐड करना है अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं ना। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब ये है, देखिए इसको थोड़ा सा मोर हाईलाइट करते हैं यहाँ पर। ये आप देखना, यहाँ पर हमने A1 में लिखा है किप्स और B में लिखा है इंडिया। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू। हम ये चाहते हैं कि थर्ड सेल में दोनों मिक्स होकर आ जाएं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू A1 एंड B1 लाइक दिस। ठीक है, तो जब आपने ये एम्परसेंड सिंबल का यूज कर लिया है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा किप्स इंडिया, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज अप्लाइंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट। Now next term is cell range. Now what is cell range? देखिए, I am going to
start selecting the cells. ठीक है, मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट करा है। आपको देखना ये सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में लिए आपको क्या करना है, जब ये आपका सिलेक्ट सेल का कर्सर आएगा उसको क्लिक करके आपको ऐसे डाउन करना है। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट आई विल एंटर वन वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू एंटर करने के बाद ये हमारा कर्सर आ गया। इस कर्सर को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने पर क्या हो रहा है, अभी हमने क्या करा कि सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आपने कर्सर को चेंज कर दिया, अब आप देखना यहाँ पे ये प्लस साइन आया, और प्लस साइन को अगर आपने ड्रैग कर दिया तो वो सेम वैल्यू सब में फिल हो जाएगी। दैट इज नोन एज ऑटोफिल। ये ऑटोफिल फीचर है। ठीक है, तो कर्सर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर हमें, अगर आप पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं या कंटिन्यू सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके लिए रेंज का मतलब होता है, इसका E1 एड्रेस है, E2, E3, E4। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फॉर्मूला ऑन दिस सेल। सबसे पहले इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। E1 इसको इट इज नॉट विजिबल फॉर यू, उसका साइज मुझे कम करना पड़ेगा। इक्वल टू सम, और ये देखिए आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर इसमें आपको रेंज प्रोवाइड करना है। रेंज का मतलब ये है आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एंड हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और आप एंड कहाँ कर रहे हैं। तो E1 से लेकर E4 तक मैं उसको एंड कर रहा हूँ। E1 से स्टार्ट करा और E4 पे जाके एंड कर रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब ये बोल रहा है, अब ये जब भी आपको इस तरह की एरर आएंगी तो आपको उसको ध्यान से समझना है। And this error is known as circular referencing. सर्कुलर रेफरेंसिंग का मतलब ये यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट, मैं आपको सेल रेंज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बोल रहा है कि आपने क्या करा है कि E1 के अंदर ही वो वैल्यू भी ले रहे हैं और E1 प्रोवाइड भी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये था कि हम E1 की वैल्यू को ऐड भी कर रहे हैं और उसी सेल में उसको शो भी कर रहे हैं, है ना। सो माय पर्पस इज टू शो द रेंज, है ना। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको जब सम अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए कोई दूसरा सेल लेना है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये सम होके नहीं आ रहा है। E1 से लेकर E4 तक का सम यहाँ पर आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने क्या करा कि E1 को ही उसमें इंक्लूड कर लिया। क्लियर? सो वी विल कंटिन्यू this range in our next class also. Okay, any doubts related to today's class? Okay, then Sairam, we will continue this topic in our next class. Sairam to all.